एक सीए एस्पिरेंट को कॉलेज जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ऑल्सो व्हाट इज द बेस्ट रूटीन फॉर अ सीए स्टूडेंट। हाय एवरीवन, दिस इज सी सुरभि कांति एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर माय जर्नी कि सीए करते वक्त मैं कॉलेज जाती थी कि नहीं जाती थी, ऑल्सो व्हाट शुड यू डू। शुड यू सिलेक्ट अ कॉलेज जहां पे अटेंडेंस है और शुड यू गो ऑप्ट फॉर अ कॉलेज जहां पे आपको कॉलेज जाना ना पड़े, विच वन इज बेटर। With that, I'm also going to share a secret routine for a CA aspirant. So make sure that you watch this video till the end. But before I begin, अगर आपने मेरे YouTube channel को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, then please make sure that you like this video and subscribe to my YouTube channel. Now let's get started. So after completing my 10th standard, 11th और 12th में I was very regular to my college और मैं उस कॉलेज में थी जहाँ पे attendance बहुत कंपलसरी था. But once I entered into a course like CA, I realized कि मुझे एक ऐसी कॉलेज की जरूरत है जहाँ पे मुझे रोज कॉलेज ना आना पड़े, because first thing is traveling was very hectic, especially in a city like Mumbai, and the second thing is I felt that it was very time consuming. कॉलेज में बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, आप फोकस के साथ पढ़ाई नहीं कर सकते हो, ऑल्सो यू गेट फोमो, आप दूसरे बच्चों को देख रहे हो कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, फेस्ट एंजॉय कर रहे हैं, बट इन अ कोर्स लाइक CA you need to have zero distractions, which also means that no college life. So after my 12th standard I changed my college to a college which was also considered to be one of the best college in Mumbai, but उसकी बेस्ट चीज ये थी कि वहां पे अटेंडेंस इश्यूज नहीं थे, तो मुझे सिर्फ एग्जाम के टाइम बस एग्जाम लिखने जाना होता था। एंड व्हाट आई पर्सनली फेल्ट दैट दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ, बिकॉज आई डिड नॉट वेस्ट माय टाइम अटेंडिंग कॉलेज लेक्चर्स। टाइम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल आई वांटेड टू डू अ कोर्स लाइक बीकॉम, ताकि इट एक्ट्स एज अ बैकअप प्लान, बिकॉज सीए ऐसा कोर्स है जहाँ पे श्योरिटी नहीं मिलेगी कि आप 4 साल तो आप डिग्री लेके ही निकलोगे, तो बीकॉम करना इज अ मस्ट। बट आई रिसेंटली डिस्कवर्ड अ प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म का नाम है कॉलेज विद्या। लेट मी टेल यू अबाउट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप वेरियस यूजी और पीजी एंड अदर ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज फिल अप सम बेसिक डिटेल्स एंड देन आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस. The AI model will then accordingly list suitable online universities and education providers. All the online universities listed are government approved. Then you can add to compare, where you can easily compare the universities you like based on 30 important factors like fees, approvals, placement, student rating and EMI facility. A good benefit with College Vidya is for the fees they give you EMI options even if the university doesn't, and here you will get two options. If you want, you can directly talk to the actual university officials, or you can connect with College Vidya experts for a free video or audio career consultation. These counselors will stay connected with you from the start of the admission till your placement is done. Also, the best part about College Vidya is it redirects you to the authentic university website, which prevents you from any kind of fake scams. Also, they provide you with placement and support services and online career booster programs which are worth rupees 6,999, but you can get them for absolutely free if you take admission from the link in the description given below, and then you can also join their huge CV community for networking. They've launched a new feature on their website, the CV subsidy. Now the students will receive a subsidy of up to rupees 10,000 once they take admission in any university. College Vidya also has jobs and internship portal which is accessible to students from day 1 of the admission. Through this portal, the student can directly apply to thousands of jobs and paid internships. Overall, it is a one-step solution for you. तो अब आप घर बैठे-बैठे बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो अपनी पसंद के. Do check out their website given in the description below. Now let's get started. Now moving to the second part of the video, and that is what is the best routine for a CA aspirant. First thing that you need to understand is time is money. जिस भी बच्चे ने टाइम वेस्ट किया वो अटेम्प्ट के लूप में फंसता जाएगा और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कभी नहीं बन पाएगा. सो यू नीड टू यूज योर टाइम वेरी वेरी इफेक्टिवली. सबसे पहले तो एक सोने का और जगने का टाइम फिक्स रखो. सेम टाइम पे उठो, सेम टाइम पे सो जाओ, सो दैट योर बॉडी नोज कि उसको किस टाइम पे अलर्ट रहना है और किस टाइम पे सोना है, किस टाइम पे रेस्ट लेना है. बिकॉज अगर आप उसको बहुत वेरिएबल रखोगे देन हो सकता है कि पढ़ते पढ़ते नींद आए और जब सोने का टाइम हो तब बॉडी स्ट्रेस ले, नींद नहीं आ रही है. सो सोने का और जगने का टाइम फिक्स रखो. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज जो मैं फॉलो करती थी इज जैसे ही आप सुबह उठते हो, वट एवर योर टाइम इज, 4 बजे, 5 बजे, 7 बजे, 9 बजे, और इवन इफ यूर अ नाइट आउल तो उस हिसाब से आप जगोगे. जो फर्स्ट स्लॉट है 3 आवर्स का होना चाहिए पढ़ाई का, और उस स्लॉट में आपको डिफिकल्ट सब्जेक्ट उठाना है, बिकॉज वो सब्जेक्ट के लिए आपको ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा. और जैसे आप सुबह उठते हो योर माइंड इज वेरी फ्रेश, योर माइंड इज रेडी टू ग्रास्प न्यू डिफिकल्ट टॉपिक्स. तो सुबह उठते ही गेट द डिफिकल्ट topics done first, then take a break of
almost 40 minutes जहाँ पे you do your breakfast, you do your you get ready for the day, take a shower, have some nuts, have some juices, eat healthy. Now once you come back, उसके बाद वापस 3 hours. So what I did was, मेरे दिन में 3-3 घंटे के 4 से 5 स्लॉट होते थे और हर स्लॉट के बीच में I used to keep a break of at least half an hour, 30 minutes, जहाँ पे मुझे ये पता होता था कि मुझे ब्रेक टाइम में भी क्या करना है. मैं दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ती थी, एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी. इससे मैं बहुत ज्यादा एक ही सब्जेक्ट पढ़ के बोर नहीं होती थी. आपको पता होगा कि एक लॉ है, लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी. आप एक ही सब्जेक्ट को पूरा दिन पढ़ते रहोगे तो डे के एंड में आते आते आप वो सब्जेक्ट से बहुत बोर हो जाओगे और उसमें आपकी एफिशिएंसी नहीं रहेगी. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू स्टडी 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे. ऑल्टरनेट स्टडी स्लॉट में आपको ऑल्टरनेट सब्जेक्ट पढ़ना है. लास्ट का जो स्लॉट है उसमें आपको पूरे दिन में आपने जितना भी पढ़ा बस वो एक बार रिवाइज करके सो जाना है. आई एम टेलिंग यू टू डू दिस बिकॉज जैसे ही आप सोने जाते हो उससे पहले का जो टाइम है उस टाइम में आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा अलर्ट रहता है. वो चीजें याद रख सकता है. जो भी आप पढ़ते हो वो सीधा जाके आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है. इसलिए रात को सोने से पहले रिविजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑल्सो मेक श्योर कि रोज सोने से पहले आप अपना नेक्स्ट डे का टाइम टेबल बना के सो, ताकि नेक्स्ट डे उठ के आपको ये नहीं सोचना पड़े कि अब मैं क्या पढ़ूं. यू हैव अ ब्लूप्रिंट, यू हैव अ टाइम टेबल, उसको अपनी स्टडी टेबल पे लगा दो और जो उसमें लिखा है ना चुपचाप इज्जत से बस उसको फॉलो करना है. नहीं तो क्या होगा, नेक्स्ट उठोगे आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा. आपको समझ नहीं आएगा कि क्या पढ़े, मन ये कर रहा है वो कर रहा है. नो, यू शुड नो कि आपको उठते ही क्या पढ़ना है. आपको पास हर सब्जेक्ट में होना है. सो यू नीड टू गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. ऑल्सो विद दैट यू नीड टू मेक श्योर दैट स्टडी टेबल के सामने एक घड़ी रखो, बिकॉज इवन इफ यू आर मेकिंग अ टाइम टेबल यू नीड टू हैव अ क्लॉक इन फ्रंट ऑफ योर स्टडी टेबल. तो आपको पता चले कि कब आपको उठना है, कब आपको ब्रेक लेना है, कब आपको खाना है, कब आपको वापस सोने जाना है. यू नीड टू बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट विथ your time and you need to be very disciplined. The next mistake what most of the students make is timetable बना लेते हैं but इतना ज्यादा हाई टारगेट्स रख देते हैं कि वो खुद ही अचीव नहीं कर पाए. व्हाट आई एम सेइंग इज, जो भी आप टारगेट बनाओ वो अचीवेबल बनाओ. ऐसे ना हवे में टारगेट्स मत बनाओ, नहीं तो क्या होगा, डे के एंड में आप गिल्टी फील करोगे एंड आपको लगेगा कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं किया. इसलिए जितना भी आपको लगता है कि आपसे हो पाएगा, टारगेट सबसे पहले तो उसी चीज का बनाओ. एंड द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो भी आपने टारगेट बनाया है मेक श्योर टू फॉलो इट एनी हाउ. फिर कुछ भी हो जाए, खुद का बर्थडे हो तो भी पढ़ाई करो, फिर फेस्टिवल हो तो भी पढ़ाई करो, घर में किसी की शादी हो तो भी पढ़ाई करो. बिकॉज आई कैन बेट यू ऑन दिस दैट पीपल ओनली सी योर सक्सेस, दे विल ओनली रिस्पेक्ट यू वंस यू हैव अचीव्ड समथिंग इन योर लाइफ. इसके साथ साथ अपने रूटीन में जस्ट मेक श्योर दैट यू इंक्लूड एटलीस्ट 20 मिनट्स ऑफ एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, बी इट वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, जिम, वट एवर यू लाइक. बट प्लीज मेक श्योर दैट फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है. तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना. जो भी खाना खा रहे हो प्लीज मेक श्योर दैट इट हैज अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन इट, बिकॉज जितना अच्छा आपका खाना होगा उतना ही ज्यादा आपका माइंड एनर्जेटिक रहेगा, अलर्ट रहेगा, वो सल्की फील नहीं करेगा. इफ यू ईट अ लॉट ऑफ जंक फूड और इफ यू हैव दिस टेंडेंसी टू डू स्ट्रेस ईटिंग, तो उससे क्या होगा, यू विल फील सल्की, नींद आएगी, डल फील होगा. ऐसा खाना खाओ जो घर पे बनता हो, जो हेल्थी हो, या फिर जो डायरेक्टली नेचर से आता हो, बिकॉज इससे आपकी बॉडी, आपका माइंड दोनों बहुत एक्टिव रहेगा. ऑल्सो वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, प्लीज मोबाइल फोन को बहुत ज्यादा यूज मत करो. आई टेल यू व्हाई. स्क्रीन टाइम जितना हो सके कम रखो. आई टेल यू व्हाई, बिकॉज जितना ज्यादा मोबाइल पे रहोगे, स्क्रीन पे रहोगे, आपकी आईज थक जाएगी, आपकी आईज वुड आस्क यू टू रेस्ट और इसके वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, सोने चले जाओगे, डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा लाइफ में, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे, अपने जो गोल है उसे भटक जाओगे. सो प्लीज थोड़े टाइम के लिए फोन को दूर रख दो. वी ऑल नो कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है. वी आर वेरी स्मार्ट. अगर आप सीए कर रहे हो दैट मीन्स यू आर वेरी स्मार्ट. यू नो कि आपके लिए क्या चीज करना अच्छा है और क्या चीज बुरा है. सो मेक योर चॉइसेस वेरी वेरी वाइजली एंड अपना टाइम वेस्ट मत करो. आई थॉट दैट आई जस्ट कम हियर एंड गिव यू अ शॉर्ट रिमाइंडर to make your timetable effectively and follow it consistently without any breaks. Also, if you want कि अगर मैं कोई और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, do let me know in the comments below. I hope this video was helpful. Please अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, please make sure that you like this video. Please subscribe to my YouTube channel. See you in the next video. Until then, take care. और एक बात हमेशा याद रखना, जब जिद्दी होगा दिल, जरूर मिलेगी मंजिल.